میرا نام للت ہے اور آج ہم جرمنی میں LGBTI پناہ گزینوں کے لیے رہنما اصولوں پر بات کریں گے۔ جرمنی میں LGBTI پناہ گزینوں کو کب پناہ دی جاتی ہے؟ ہم جنس پسند عورتیں، ہم جنس پسند مرد، ایپلنگی، ٹرانس اور بین سیکسی افراد کو جن کو ایزا دی جا رہی ہو جرمنی میں پناہ گزینی کے مستحق ہیں۔ ایزا رسانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے آبائی ملک میں جنسی رجحان یا صنفی شناخت کے سبب انتہائی تشدد، موت، قید یا دیگر اقسام کے غیر انسانی سلوک کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ جرمنی میں LGBTI ہونا کوئی ممنوعہ چیز نہیں ہے اور جرمنی کے لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں کھل کر بات کرنی چاہیے۔ کب ریاستی ایزا رسانی پناہ گزینی کی بنیاد بنتی ہے؟ ایزا رسانی یا امتیازی سلوک کی کارروائیوں کی نوعیت یا تعداد کی شدت کو اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی شمار ہو۔ یہ حقیقت کہ ہم جنس پسندی کی سرگرمی قانون کے مطابق جرم ہونا خود بخود ایزا رسانی کا فعل شمار نہیں ہوتا۔ صرف اس طرح کی سزا کو حقیقی طور پر نافذ کرنے کو ایزا رسانی کا فعل سمجھا جاتا ہے۔ خاندان کی جانب سے ایزا رسانی یعنی کہ غیر ریاستی ایزا رسانی کب پناہ گزینی کے لیے بنیاد شمار کی جاتی ہے؟ اگر ایزا دہندہ کسی ریاستی ادارے، پولیس، عدلیہ وغیرہ کی بجائے ایک غیر ریاستی ادارے یعنی ملیشیا، خاندان وغیرہ ہے تو ایزا رسانی صرف تب پناہ گزینی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے اگر ثبوت فراہم کیا جاتا ہے کہ ریاست تحفظ فراہم نہیں کر سکتی یا نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندان کے افراد کی جانب سے تشدد اور تشدد کی دھمکیاں صرف تب کسی مظلوم شخص کو پناہ گزینی کا مستحق بناتی ہیں اگر یہ بات واضح ہو کہ اس کو پولیس کی جانب سے یا ملک کے کسی اور حصے میں منتقل ہونے سے تحفظ نہیں ملے گا۔ پناہ گزینی کے طریقہ کار کے دوران آپ کہاں رہیں گے؟ پناہ گزینی کے لیے درخواست دینے کے بعد پناہ گزین کو ایک وفاقی ریاست میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پناہ گزینی کے طریقہ کار کے دوران پناہ گزینوں کو ابتدائی طور پر اجتماعی رہائش گاہ میں رکھا جاتا ہے۔ LGBTI پناہ گزین اپنے تحفظاتی ضروریات اور مسائل کے بارے میں ملازمین سے صیغہ راز میں بات کر سکتے ہیں۔ ایک قاعدہ کے طور پر پناہ گزینوں کو اپنی پناہ گزینی کی درخواست کے منظور ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، اس سے قبل کہ ان کو کوئی بلدیہ میں منتقل کیا جا سکے، کسی نجی اپارٹمنٹ میں منتقل ہو سکیں، انٹیگریشن کورس میں حصہ لیں اور کام شروع کر سکیں۔ پناہ گزینی کا طریقہ کار کیسے کام کرتا ہے؟ جرمنی میں آنے کے بعد ہی پناہ گزینی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہیں۔ پناہ گزینی کے طریقہ کار میں عام طور پر فیڈرل آفس برائے ہجرت اور پناہ گزین یعنی کہ BAMF کی جانب سے 2 سماعتیں شامل ہوتی ہیں۔ پہلی سماعت کا بنیادی طور پہ مقصد یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے کیس کے بارے میں کون سی ڈبلن ریاست ذمہ دار ہے۔ ڈبلن ریاستیں تمام یورپی یونین کے رکن ممالک ہیں اور اس وقت آئس لینڈ، ناروے، لچٹنسٹائن اور سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہیں۔ پناہ گزینی حاصل کرنے کے لیے آپ کی وجوہات کو دوسری سماعت تک نپٹایا نہیں جاتا۔ BAMF اپنے ملازمین کو تمام معلومات خفیہ رکھنے کے لیے قانونی طور پر پابند کرتا ہے۔ آپ کو سماعتوں سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سماعتوں کے لیے تیاری کرتے وقت LGBTI پناہ گزینوں کے لیے پناہ گزینوں کے مشیروں اور رابطہ تنظیموں کی حمایت حاصل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا خیال ہے کہ تمام ایزا رسانی کی کارروائیوں کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھ لیا جائے، شہادت اکٹھی کی جائے
और अपने साथ पेश आने वाले तजर्बात के बारे में गुफ्तगू करने की मशक की जाए। इस बात का भी मशवरा दिया जाता है कि LGBTI अमूर के साथ शनासा इंटरव्यूअर के साथ मुलाकात के लिए दरख्वास्त के लिए जितना जल्दी मुमकिन हो ईमेल भेजी जाए और अथॉरिटी को मुतला किया जाए कि आपके हमरा कोई होगा। पहली समाअत के दौरान क्या होता है? पहली समाअत बुनियादी तौर पर पनाहगज़ीन के अपने बारे, इसका ख़ानदान कहाँ रह रहा है और फ़रार होने का रास्ता कौन सा लिया गया है के बारे में सवालात पर मुश्तमिल होती है। आम तौर पर पनाहगज़ीनी के तरीक़ाकार की ज़िम्मेदारी वो डबलिन रियासत होती है जिसने एंट्री वीज़ा दिया। अगर पनाहगज़ीन किसी वीज़ा के बगैर मुल्क में दाखिल होता है तो इस तरीक़ाकार का ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर वो मुल्क होता है जिसमें पनाहगज़ीन पहले से दाखिल हुआ। ऐसी सूरतों में पनाहगज़ीन को आम तौर पर इस मुल्क में वापस भेज दिया जाता है। दूसरी समाअत के दौरान क्या होता है? दूसरी समाअत उन वजूहात पर मरकूज़ होती है कि पनाहगज़ीन अपने मुल्क से क्यों फ़रार हुआ। इन वजूहात को तख़सीस के साथ वाज़ेह तौर पर और तफसील के साथ कोई चीज़ छोड़े बगैर या किसी मुतज़ाद बयान के बगैर बयान किया जाना चाहिए। बाफ अमूमन समाअत के दौरान बोली गई झूठी बातों की निशानदही कर लेता है और इसकी वजह से दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है। इसके बाद बयान का तर्जुमा किया जाता है और दस्तखत किए जाने पर मुसद्दिक तस्वुर किया जाता है। इस वजह से पनाहगज़ीन को समाअत के दौरान बयान में ज़िक्र करदा तमाम अमूर पर इसरार करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की कौन सी इक़साम मौजूद है? क्लासिक पनाहगज़ीनी यानी कि इब्तदाई तौर पर 3 साल की मुद्दत के लिए बुनियादी तौर पर सियासी एज़ा रसानी का शिकार होने वाले अफराद को दी जाती है जो जर्मनी में बराह रास्त परवाज़ों के ज़रिए दाखिल हुए। इसके बरक्स तशद्दुद के शिकार अफराद जो यूरोपीय यूनियन की किसी और रियासत के ज़रिए जर्मनी में दाखिल होते हैं, इनको मखसूस हालात के तहत महाजिर की हैसियत दी जाती है, ये भी 3 सालों के लिए। खाना जंगी से फ़रार होने वाले अफराद को आम तौर पर ज़िमनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है जो कि इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए होता है। तमाम हालात में इस हैसियत में तोसी की जाएगी अगर पनाहगज़ीनी के लिए मज़ीद वजूहात मौजूद होती हैं। खाना जंगी के शिकार ममालिक से LGBTI महाजरीन को किस बात पर गौर करना चाहिए? जिनसी रुझान या सिनफी शनाख्त के सबब एज़ा रसानी और इम्तियाज़ी सलूक की कार्रवाइयों को भी बयान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 सालों के लिए तहफ़्फ़ुज़ शुदा हैसियत दी जा सकती है। खाना जंगी की वजह के अलावा इन वजूहात को बाद में शामिल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए तो आप क्या कर सकते हैं? किसी मनफी फ़ैसले का लाजमी मतलब मुल्क बदली नहीं है। पनाहगज़ीनों को वकील के ज़रिए मनफी फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का हक़ हासिल है। अगर अपील नाकाम हो जाती है तब भी कई वजूहात मौजूद हैं क्योंकि अक्सर इसका मतलब मुल्क बदल किया जाना नहीं होता। बहुत सी सूरतों में इस वजह से ये मालूम करना एक अच्छा ख्याल है कि आया मुल्क बदल किए जाने में कोई रुकावटें मौजूद हैं, बावजूद इसके कि पनाहगज़ीनी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई हो। तेज़ रफ्तार तरीक़ाकार क्या है? तेज़ रफ्तार तरीक़ाकार इन पनाहगज़ीनों पर लागू किया जाता है जिनका नाम नहाद महफूज आबाई ममालिक
यानी यूरोपीय यूनियन की तमाम रियासतें और इस वक्त बालखान रियासतें, घाना और सेनेगाल से ताल्लुक़ हो। ऐसे पनाह गुज़ीन जिन्होंने हुक्काम को अपनी शनाख्त के बारे में गुमराह किया हो या जिन्होंने अपनी दस्तावेज़ात को तबाह कर दिया हो, इनको तेज़ रफ्तार तरीक़ाकार से गुजारा जा सकता है। इस तरीक़ाकार में पनाह देने वाली अथॉरिटी इब्तदाई तौर पर ये फ़र्ज़ करती है कि पनाह गुज़ीनी के लिए कोई वजूहात नहीं है। इस वजह से दरख्वास्त को आम तौर पर वाज़ेह तौर पर बेबुनियाद समझकर मुस्तरद कर रहे हैं। आपको आपकी सिनफ़ी शनाख्त और जिनसी रुझान के बारे में क्या मालूमात फ़राहम करनी है। ये ज़रूरी है कि LGBTI पनाह गुज़ीन अपने पनाह गुज़ीनी के तरीक़ाकार के दौरान अपने जिनसी रुझान या अपनी सिनफ़ी शनाख्त ज़ाहिर करें। इसके लिए इन्हें अपनी निजी ज़िंदगी, अपने शख्सी दरियाफ्त के अमल और अपने साबका रोमानी और जिनसी ताल्लुकात के बारे में सवालात का जवाब देना चाहिए। ताहम इनके जिनसी अफ़आल के बारे में सवाल ममनू है। जिनसी मवाद के साथ तस्वीर और वीडियो को सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जाता है। अगर आपने पनाह गुज़ीनी के तरीक़ाकार के दौरान अपनी सिनफ़ी शनाख्त या जिनसी रुझान के मुतालिक बयान नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं। अगर पनाह गुज़ीनी की दरख्वास्त का नतीजा मनफी होता है तो आम तौर पर आबाई मुल्क को छोड़ने के लिए इजाफी वजूहात मुहैया करने के लिए एक और समाअत का मौका देने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से शुरू ही से मुल्क से फ़रार होने के लिए अपनी जिनसी रुझान या सिनफ़ी शनाख्त की तखसीस को वजह बनाना ज़रूरी होता है। LGBTI लोग जो खौफ या शर्म की वजह से ऐसा नहीं करते और जिनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है तो वो एक फॉलो अप दरख्वास्त दायर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी LGBTI मुशावरती मराकज़ मदद फ़राहम करते हैं। क्या आपको पनाह गुज़ीनी नहीं दी जाएगी अगर आपने अपने आबाई मुल्क में खुले तौर पर LGBTI के तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारी। LGBTI पनाह गुज़ीन जो अपने आबाई मुल्क में खुले तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजारते रहे और इस वजह से एज़ा रसानी का शिकार हुए बगैर वहाँ से निकले, इनको सिर्फ तब पनाह गुज़ीनी दी जाएगी अगर उन्होंने ऐसा एज़ा रसानी के खौफ से किया हो, अगर उन्होंने अपनी जिनसी रुझान या सिनफ़ी शनाख्त को अपना वक़ार कायम रखने और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए किया, तो ये आम तौर पर पनाह गुज़ीनी के लिए बुनियाद नहीं बन सकती। इस तरह की सूरतों में अक्सर ये फ़र्ज़ किया जाता है कि आप इस तरह ज़िंदा रह सकते हैं और आप पर तशद्दुद का इम्कान नहीं है। शादीशुदा हमजिन्स पसंद पनाह गुज़ीनों को वाज़ेह करना होगा कि वो शादीशुदा क्यों है।